हाँ, ओपन बुक। कंडक्टेड बाय ओपन बुक, बट मेन एग्जाम आप लोगों के ऑफलाइन ही होंगे 12th के। 10th के जहां तक है कि इस बार भी वैसा ही जाएगा लास्ट ईयर के जैसा, जहां तक समझ में आ रहा है पूरे मार्क्स जैसे मंगवा रहे हैं इस बार। Okay, Minnie, can you tell me the last verb? यस सर। Anybody remember without checking the register? Yes, sir. The last verb was belong. Beta, it came during the discussion. Please tell me second last. Yes. गेट रेड ऑफ सर। Crams. That is written. क्रैम मगअप। Cram, mug up. Okay, I will have to check. check. Have I given you initiate? सर It's rest. इट इज रेस्ट। Wake up? वेकअप इज It डन। is done. यस सर, डन। Get up. Get up is done. Wake up and get up. बोथ आर डन सर। Listen and hear. नो इट्स नॉट। Listen and here is rest. Our rest. मैंने पूछा मीता जी से। मीता दी, what should be the verb for सुनना? Uh, Meaning the verbs should be for sunna is hear or listen. Uh, गुड Deepika, मॉर्निंग नीता जी। uh, Deepika, what should be the second form of hear? The second form of hear should be heard. Come again, Deepika. The second form of hear should be heard. Uh, Yeah. Shivang, what should be the third form of hear? द थर्ड फॉर्म ऑफ फियर इज आल्सो हार्ड। नाउ Good morning, Shivang. देयर इज नो क्वेश्चन दीदी। ओके, व्हाट शुड बी द अनदर वर्ब फॉर सुनना दीदी? The another verb for sunnah should be listen. Uh, Neha, what should be the second form of listen? The second form of listen should be listened. Listened. Okay. Uh, Meeta ji, what should be the third form of listen? Neha, the third form of listen should be sorry. The third form of listen should be listened. वो एक गाना है ना उसमें बोलता है लिसन। Um, who is rest? Okay. I am rest. Okay.
नम्रता जी, what should be the verb for इरादा करना? The verb for irada karna should be intent. It's But done sir, ना. it's done, sir. है ना Yeah, sir, it it's is done. already done. Yes, sir, it's done. And so, please, can anybody tell me what should be the noun of intent Intention, sir. Yes. Intention, given? yeah. Given. Yes sir, you have given us. Thank you. What should be the? अच्छा, have I given you मांगना, मांग करना verb? So it is rest. It rest. Ask for, it is done. Okay, whose go is this for asking? My go. Nidhi, what should be Sorry the Neha, it's Namrata's goals. Okay, okay. Nidhi, what should be the verb for मांग करना or मांगना? The verb for मांग करना या मांगना should be demand. Deepika, what should be the second form of demand? The second form of demand should be demanded. Neetaji, what should be the third form of demand? Deepika, the third form of demand should be demanded. Um, अब आप Neha, पूछिए इसका नाउन क्या होना चाहिए ये पूछिए. yeah. Shivang, what should be the noun for demand? The noun of demand should be demand. Yeah, Didi, what should be the Hindi of demand? Shivang, the Hindi of demand should be मांग करना. Sorry, give it's me verb Neha. मांगना. No problem. You can ask somebody. Deepika di, what is the Hindi meaning of demand? As far as I think, as noun, it's mang. The Deepika asked about this two questions. okay, sir. Mini, have you written that? Yes, I have written Sorry, that. Didi. Sorry. Shivang, tell her. The first one. Ask the first one. Okay. Okay. Have you written the first one, Mini? Yes, I have written the first one. Should I erase? Yes, you should erase. Neha di, have you written the second one? Yes, Mini, I have written the second one. Should I Uh, erase? yes, you should raise that. Nidhi, have you written the third one? Yes, I have written the third one. Should I raise that? Yes, of course, you should erase that. Neetaji, have you written the last one? Yeah, Nidhi, I have written the last one. Should I erase? Yeah, you should erase. नीता जी, अब आपको क्या प्रश्न पूछना चाहिए? Anybody else? What was the last idiom?
बेटा इडियम बाद में आते हैं, सेकंड नंबर। Okay, interactive sentence. Shivang, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was sooner or later, that is, एक ना एक दिन या देर सबेर। शिवांग, आखिरी बोलचाल का वाक्य क्या था? बेटा आखिरी नहीं, पिछला। पिछला बोलचाल का वाक्य क्या था शिवांग? पिछला बोलचाल का वाक्य sooner और later था, जिसका अर्थ है देर सवेर या एक ना एक दिन। शिवांग अगली बार क्या करना, केवल इंग्लिश बताना और हिंदी एक और कैंडिडेट से पूछना। सभी लोग ध्यान रखें, तो 2 लोगों से क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, चेक भी हो जाएगा इसी पर। अब तुम केवल इडियम पूछो और फिर वो उसका हिंदी कोई दूसरे से पूछे। मिनी दीदी, what should be the last? नहीं, what is the नहीं, what was the last idiom? The last idiom was nothing succeeds like success. Neeta di, what is the Hindi meaning of last idiom? Come again, Nidhi. What was the Hindi meaning of last idiom? I don't know. The last Ask the question. Neeta di, what was the Hindi meaning of last idiom? the Hindi meaning of last idiom is भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। Have I given? Yes, Have sir. I given? Yes, sir, you have given us. Okay. I am very grateful to you. Have I given? No, sir. It's No, rest, sir. Sir, you Sir, given today I will last time. deliver my speech. Okay, very nice, very nice. Firstly, let me give interactive idiom. Later on, I will invite you. Meanwhile, latecomers will come. Then last you give one interactive what to say, but Hindi is rest. Interactive is what to say. अच्छा, तुमने लिख लिया था वो, तो You चलो said उसी to को, leave to. ठीक है, उसी को अपन लेके आगे बढ़ें क्या? Okay, sir. शिवांग, फर्स्टली स्पीक एज इट इज, और कोई एक हिंदी बोलना, दोनों में। What to say? क्या कहते हैं? नम्रता दीदी। Sorry. Sorry for Hindi. Come again, Shivang. Shivang, are you there? Okay. Okay, I will read, ना? हाँ, you. Okay, ना? What to say? क्या कहना है? अमृता? What to say? क्या कहना है? नीता जी? what to say क्या कहना है या क्या कहें? दीपिका? What to say? You go. क्या कहें?
मिनी व्हाट टू से क्या कहना है? निशादी। व्हाट टू से क्या कहना है? नेहा। व्हाट टू से क्या कहें? नीता जी। I am done. Neetaji is done. हिंदी। What to say? क्या कहें? All are done. No, Shivang is rest. I'm back. What to say? क्या कहे? क्या कहता है? दोस्तों चलिए क्रिएटिविटी करते हैं। पहले वर्ब बदलते हैं इसमें, और अगर आगे पीछे प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपको कुछ रखने की इच्छा हो सेंटेंस, तो उसको भी जरूर रखिए। जैसे पहला एग्जांपल मैं देता हूँ। आई एम कंफ्यूज्ड व्हाट टू हैव। रसगुल्ला और चमचम। मैं कंफ्यूज हूँ, क्या खाऊं, रसगुल्ला कि चमचम। Who is reading? I am confused. Okay. What to get? मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या लूं। What to do? You have already done. क्या कहना है? तुमने तो पहले ही कर लिया भैया। हाँ, एक्स्ट्रा सेंटेंस लगाने का मतलब ये है बच्चों कि जैसा सेंटेंस मैंने बनाया जरूरी नहीं कि आप उसका पालन करें। क्रिएटिविटी कुछ भी आप रख सकते हैं, चाहे इस तरफ रखें चाहे इस तरफ। वेरी नाइस। प्लीज रिपीट निधि। Okay, sir. What to do? You have already done. क्या कहना है? तुमने तो पहले ही कर लिया। Who is ready? I'm ready. I missed my train. What to say? मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी, क्या कहूँ? Sorry, Didi. Please give 3D because we should change the verb. अच्छा, से की जगह कुछ और लगाना है। ओके। गुडनेस एंड आसकास, नेकी और पूछ पूछ, लाइक ड्रॉज लाइक, चोर चोर मौसेरे भाई, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज देयर, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। पास। Who is ready? I am ready. I am worried. What to do? मैं चिंतित हूँ कि मैं क्या करूँ। ये वर्ब Is that right? गई है नीता जी। निधि क्या गलत है? this verb. Give 3D Okay. please. Okay. But your first sentence was good. I am worried. Nice. Nothing succeed like success. भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। And Sorry, come again. Nothing succeeds like success. So there you are. भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है।
And second is hmm, कहाँ गया सर? हाँ, empty uh, empty mind is devil's workshop. खाली दिमाग शैतान का घर. And third is mm, crying in wilderness. भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस नहीं चल रहा है. Okay. So I am ready. yeah, Okay. pass. What to say? You are agree. Sorry, please give 3D. We are also not listening. Sorry. से तो जो लिखो बेटा. You would not listen carefully. तो 6 का दंड दो बेटा, बहुत सोती रहती कसम से. 6 का दे दो. Good morning, Nisha Didi. She is turning the pages. While she is standing, I am ready for making sentence. Okay, make. What to hear? DJ remix or 90s? क्या सुनूं? DJ remix सुनूं कि 90s सुनूं? Very nice. Who is ready? Sir, 3D. 6D, 6. 6. Okay. Work is Sir, I music. am ready. Deep patience Namrata Didi. Work is music. कर्मी ही पूजा है. It is raining cats and dogs. मूसलाधार बारिश हो रही है. चोर चोर, sorry. Like draws like. चोर चोर मौसेरे भाई. Goodness and नेकी और पूछ पूछ कर. It is not working. एक कुछ जम नहीं रहा. Do not take me for granted. मुझे हल्के में ना लें. How is going on? कैसा चल रहा है? Okay, as you wish. Okay, who is ready? I'm ready, sir. I'm ready, sir. What to choose? साड़ी और सलवार सूट. मैं क्या चूज करूं? सर वेयर आएगा सर यहाँ पे. चूज इज करेक्ट ना? चूज इज करेक्ट ना? मैं क्या चूज करूं? साड़ी या सलवार सूट? Correct. रेडी? I am ready. What to speak? She got married, run away. मैं क्या बोलूं? उसने भागकर शादी कर ली. गुड. बढ़िया. दोस्तों, सेंटेंस ग्रामर की दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन हर बार सही होना जरूरी भी तो नहीं है. गुड. It is working in Hindi. हाँ. फुल्की खाई थी? क्या खाए खाने थी? No, sir. I have not take pulki. Sir, actually, I am having fever. That's why. Oh. Take care. Take Viral care. fever, sir. Take care. सैमली दीदी मेरा भी वही है. हमारे यहाँ दो निधि दीदी हैं, दोनों एक साथ बीमार हो गई. सर वो सेंटेंस कैसे बनेगा? अभी परफेक्ट टेंस आ रहा ना बेटा, उसमें बनवाएंगे अपन. तुम उसको कहीं साइड में लिख लो, जब परफेक्ट टेंस दे तो पूछना, फिर अपन बनाएंगे मिलके. Who is ready? Sir, I am ready. I'm ready. Okay, Neha Didi, after you. What to
what to play. Uh, uh, I I could I could chess and badminton. Uh, मैं क्या खेलूं? बैडमिंटन खेल सकते हैं या चेस खेल सकते हैं? Now I'm ready. Sorry, Neha. Okay. एक मिनट। What to make? Dessert or salty? Hmm, क्या बनाना है? मीठा की नमकीन? मीठा। नहीं बेटा, यहाँ पे तो फिर स्वीट और सॉल्टी रखो ना, कॉम्बिनेशन। Okay. What to make? Sweet or salty? क्या बनाना है? मीठा या नमकीन? स्वीट। Okay, I'm ready. It's your Siva. Okay, after you, Shivan. Okay. What to keep in my अलमारी? अपनी अलमारी में क्या रखूं? दीपिका दीदी, it's your go. What to ask? Literature or language? मैं क्या पूछूं? Literature या language? कुछ ही पूछ लो, बनना नहीं है। Who is ready? I am ready. What to watch? Serial and movie. मैं क्या देखूं? सीरियल या मूवी? नेहा ये लिख लो बेटा। Who is ready? नेहा ये लिखो, क्या लिखा है? और या लिख लो अथवा। ओके। What to have? फुल्की या चाट? क्या खाऊं? फुल्की की चाट? Chat will do. You are having fever. Chat will do. You are having fever. Okay. Who is ready? I am ready. What to read? Newspaper or magazine? मैं क्या पढूं? Newspaper या magazine? Who is ready? I'm ready. What to write? Story or poem? मैं क्या लिखूं? कहानी या कविता? बेटा ये गलत हो गया, अरे हमने ध्यान नहीं दिया। इतनी देर से अगर कोई मैं लगा रहा है तो सबके सेंटेंस गलत है। इंटरेक्टिव सेंटेंस की विशेषता तो देखो बच्चों। ये इंटरेक्टिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कहीं दिख रहा है दूर दूर तक। मूसा। What to write? इंटरेक्टिव Poem सेंटेंस or चाहिए। story? That is, क्या लिखूं? कविता या कहानी? यस, वेरी गुड। What to tell? He knows already. He already knows. He already knows. क्या बताऊं? क्या कहें? क्या बताएं? वो पहले से जानता है। Nice sentence. What to tell? He already knows everything. बेटा एक छोटी सी चीज और नोट कर लो। टेल क्रिया के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। मेरे पास एक पूरा बना बनाया रखा हुआ है, मैं भेज दूंगा। उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, अकेले प्रयोग नहीं की जाती वो टेल क्रिया। ओके सर। व्हाट टू टेल हिम या हर, कुछ भी रखो। फिर से बोल दो।
What to tell him? He already knows everything. उसे क्या What to बताऊं? go? वो पहले ही से सब कुछ जानता है. अच्छा. Okay, रोशनी, it's your voice. रोशनी, What to go? दिल्ली या मुंबई? कहाँ जाऊँ? दिल्ली या मुंबई? सॉरी रोशनी, What to go? दिल्ली और सॉरी. बस हम हिंदी सुधार दे रहे हैं बेटा, बाकी सही हो जाएगा. क्या जाऊं, दिल्ली या बम्बई? व्हाट यानी क्या होता है बेटा, कहाँ नहीं होता, कहाँ के लिए वेयर होता है. और वेयर अपन कल खेलेंगे, मतलब अगली क्लास में. देखो तुमने व्हाट लिखा है कि वेयर लिख लिया बेटा? हमने अभी मिटाया है, पूरा दोबारा लिखा था. क्या लिखा है क्या? What to Who is take? ready? I am ready. What to take? Mint or black? मैं क्या लूँ? Black की mint. दीपिका दीदी what to have? Yes, Shivang. What to दीपिका have? दीदी करें. धूप और छाँव in winter season. क्या लूं, धूप या छाँव सर्दियों में? धूप या छाँव? व्हाट टू बिगिन इंग्लिश कोचिंग और हिंदी कोचिंग, क्या शुरू करूं? हिंदी कोचिंग या इंग्लिश कोचिंग? Hindi is difficult. So, both are. oh, Hindi is difficult. Please join Hindi coaching. And सर ने only बोला Sunday. निशा, व्हाट इज आस्पेक्ट? Good morning, Nisa ji. रोशनी, व्हाट इज आस्पेक्ट? Sir, aspect is noun. ऐसा बोलो एक बार रोशनी. आस्पेक्ट इज अ नाउन. Aspect is a noun. अब मीनिंग पूछ लो किसी से. Mini. What is the Hindi meaning of aspect? Mini. जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनमें से किसी का नाम पुकार. Deepika Didi, what is the Hindi meaning of aspect? As far as I think, it should be the Hindi meaning of aspect should be pehlu, and the another meaning is, बताऊं सर? Aspect, that is किसी पे, सॉरी, that is. यहाँ पे ध्यान देना. हाँ, ये BR मीन्स ब्रिटिश एंड AM मीन्स अमेरिकन. अमेरिकन ऐसा उच्चारण करते हैं एस्पेक्ट, और ब्रिटिश लोग ऐसा उच्चारण करते हैं. ये सब डिक्शनरी में दिया रहता है बच्चों, हम मन से नहीं लिखवाते हैं. इट इज ऑल गिवन इन द डिक्शनरी. सर एक और होता है एक्सपेक्ट करना किसी पे, मतलब किसी से उम्मीद रखना, लाइक. वो कोई ना कोई ढूंढ के ग्रुप में शेयर करना, उसकी स्पेलिंग अलग है. ठीक. कैन एनीबॉडी गेस द मीनिंग ऑफ दिस? यस सर. हर
दो पहलू होते हैं। किसके? हर सिक्के हर के दो सिक्के पहलू के दो होते हैं। पहलू होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चलो तुम ही से शुरुआत करते हैं। दीपिका बोलो। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। शिवांग। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नम्रता दीदी। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। निधि। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नीता जी। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नेहा। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट, दैट इज हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। रोशनी दी। मिस्टेक। दैट कम इज अगेन नेहा। हर स्टूपिड एवरी मिस्टेक। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट, दैट इज हर सॉरी, सिक्के स्टूपिड कम मिस्टेक। अगेन। कम अगेन। स्पेक्ट, देख के गलत। स्पेक्ट। एवरी कॉइन हैज टू स्पेक्ट्स, दैट इज हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दी। एवरी कॉइन हैज टू एक्सपेक्ट्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मिमी। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। निशादी। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स। सिक्के के दो पहलू होते हैं। शिवांग। एस्पेक्ट्स, यू आर डूइंग स्टूपिड मिस्टेक, है ना? शिवांग। I'm done. Yeah, I'm done. Rest. ऑल आर डन। ओके बच्चों, इस बैच में पहली स्पीच किसने दी थी? मतलब ये सेकंड वाली स्पीच? अच्छा, शिवांग ने, राइट। शिवांग। सो नम्रता, आर यू रेडी? Namrata, are you there? Yes, sir. I am ready. Okay. So, guys, I would like to invite Namrata Dwivedi to deliver her second speech. Put your hands together for her. Thank you, sir. Gives me this opportunity. And good evening, folks. How are you? We all are fine. We are fine. Today I am going to deliver my second speech, which is related to my daily routine. So let's start with the morning. I usually wake up at 7 a.m. on weekdays. And I wake up 10 a.m. on weekend. Later on, I stay in a bed for 10 minutes. And then my soul speaks to me. My soul speaks to me, if you want to do something best, you do it by yourself. Then finally I get up. I need my breath to put toothpaste
I brush my teeth, and thereafter, I spitting toothpaste. I wash my face. Thereafter, I put back my toothbrush on toothbrush cup. Later on, I do exercise, and meanwhile, my somebody knock my door, and I ask, who is it? My cook reply, it's me. I open the door and say, please come. When I do exercise, as well as I listen news. Sometimes I listen song. Then my maid asked to me, what you would like to have in breakfast. I say to her, can you make poha today? She reply, yes, why not? Thereafter, I say to her, please can you make one cup of tea? She reply, yes. Then I again speak to her with a smile, no auntie, can you make a 2 cup of tea? She reply, she does not reply, she smiles. And, then after I have a shower, and after having a shower, I dry my hair, I comb my hair, I apply makeup, I worship the God and chant mantras. Thereafter, I get ready, I pick my dress according to day. Today is a Tuesday, I will wear orange Rasna color. And day by day, I pick my dress. And after get ready, I have breakfast. And I write my work plan for whole day. Then I leave my room. I reach department by 9:45. And then check mails and have some phone calls. Thereafter, execute some experiments. Some days classes I take lecture, and some day execute experiment, some day some planning and meetings. Thereafter, I wrap up. Thereafter, I take my lunch around 1 p.m. And in evening, I wrap up my bag by 6:10 and come back to my home and take a English class of Jhalsar. And by 8:30, I have dinner. Thereafter, I have some calls, and again I check some emails. If needed, I reply the emails and do some work on my lab P. Or thereafter, I read book and by 10:30, turn off the light, and I sleep by 11:30, 12:30, and there is no certain time to sleep. It's all about me.
It's all about my daily routine. Okay, very nice. आज मैं तुरंत ही रिव्यू देता हूँ. Guys, I have noticed sincerity and honesty in the speech. मैंने स्पीच में ईमानदारी और लगन नोटिस की. यूजुअली का बहुत खूबसूरत प्रयोग किया नम्रता ने. नम्रता यूज्ड यूजुअली वेरी नाइसली. जो बंदे स्क्रीन पे देख के स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो तुरंत लिख लें, और नहीं तो जैसा मैं करता था जब मैं इंग्लिश नहीं जानता था और इंग्लिश का कीड़ा काटा था, सीखने की कोशिश कर रहा था, तो मैं ऐसे लिख लेता. बाद में सर उसको उसमें आपने हम लोगों को लिखवाया था. हाँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आपने लिखवा दिया था तीनों. तो मैं जो चीज जरूरी होगी फिर मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा बच्चों. तो आपको सुन के भी अच्छा लगा होगा कि यूजुअली, whenever you use usually sounds beautiful. जब भी आप यूजुअली का प्रयोग करते हैं बहुत खूबसूरत प्रतीत होता है. इमेजिनेशन का अच्छा प्रयोग किया नम्रता ने. Some people's videos are paused due to network issue. हमारी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आया. हो सकता है वॉइस शॉपिंग हो, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो दोस्तों, सो प्लीज इन्फॉर्म मी. आपकी वॉइस क्लियर है सर. ओके. थोड़ा सा इमेजिनेशन किया नम्रता ने. नम्रता इमेजिन समथिंग एंड पुट वन ब्यूटीफुल idiom beautifully. My soul says to me, मेरी आत्मा मुझसे कहती है, if you want to do something best, do it yourself. बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता. Actually, I think yesterday Shivang asked about this idiom and somebody informed. Nidhi informed. Have I given you this idiom? No? Okay. Yes, sir. So Namrata used this idiom beautifully, correctly, nicely. One sentence was also very interesting. I don't remember exactly, but she said, while brushing, while spitting, I wash my face on the mirror like this. It was an unusual sentence, but it was good. Namrata, would you like to repeat? Sir, after spitting out, I wash my face. After spitting out toothpaste, I wash my face. It was a sentence. Okay, very nice. दोस्तों अच्छा वाक्य है. स्पिट क्रिया का प्रयोग आपने देखा, थूकना होता है. हमने लिखवाया कि नहीं पता नहीं, लेकिन जनरली कहीं ना कहीं लिखी रहती है, डोंट स्पिट हियर. हमने गोवा में कई जगह लिखा देखा था, नो स्मोकिंग नो स्पिटिंग. अपने यहाँ तो नो स्मोकिंग बस लिखा रहता है, गोवा में कई जगह लिखा था बोर्ड, नो स्मोकिंग नो स्पिटिंग. तो थूकने के लिए वर्ब होती है स्पिट.
अभी तो स्क्रीन पे देख के आप लिख लें। It was unusual and good sentence. A very nice use of meanwhile. She used meanwhile so beautifully. Meanwhile, somebody knocks the door. इसी बीच कोई दरवाजा खटखटाता है। I ask who is it? Nice use of this interactive sentence. हमने दिया होगा तभी तो यूज किया, राइट? Yes, sir, you have given us. तो नम्रता ने प्लॉट बनाया होगा कि इस इंटरेक्टिव को कैसे रखें। तो ये थोड़ा सा इमेजिनेशन है, आप बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो somebody knocks the door. I ask who is it? कोई दरवाजे को खटखटाता है, मैं पूछती हूँ कौन है, तो my maid replies it's me. ये उसने रखा था कि नहीं, I don't know. As well as मैं लिखवा देता हूँ। दोस्तों मुझे नहीं पता ये क्या है, एडजेक्टिव है कि कंजंक्शन है, आप भेजिएगा इसको कंफर्म करके। एज वेल एज, साथ ही साथ। सर इसको वर्ड मीनिंग में लिखना है। हाँ बेटा, मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए तुम जहां भी अभी रफ में लिख लो, और जैसे कोई भेजेगा गूगल में कि ये टाउन है कि एडजेक्टिव है कि कंजंक्शन, तब उसको प्रॉपरली वर्ड मीनिंग में लिख देना। अभी रफ में लिख लो, एज वेल एज, साथ ही साथ। तब तक मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ और जिससे बने वो बना देना। ही वॉज, तुमने क्या सेंटेंस बोला था नम्रता? Sir, I exercise. I do exercise as well as listening news. As well as listen news. Listening नहीं था। डू की भी जरूरत नहीं है नम्रता। I exercise as well as listen to the news. मैं एक्सरसाइज करता हूँ, साथ ही साथ न्यूज भी सुनता हूँ। सबके लिए जरूरी नहीं, जिस जिसके दिमाग में आ रहा है वो इज रेडी, दो चार सेंटेंस बना ले। सर साइमल्टेनियसली के जैसे यूज किया जा सकता है ना इसे, लेकिन अभी चूंकि ये है तो अपन इसको यूज कर लेते हैं ना। ओके, I make tea as well as I chop my vegetables. Complete the process. मैं चाय बनाती हूँ, साथ ही साथ अपनी सब्जियां काटती हूँ। Who is ready? Okay, I'm ready. She is very beautiful. She's okay. Can I? Yes, yes, carry on. Yeah, you should complete. She is very beautiful as well as I. वह बहुत ही सुंदर है, साथ ही साथ मैं भी। You admire yourself. That's good. I write as well as I listen song. मैं लिखती हूँ, साथ ही साथ गाने भी सुनती हूँ। एज वेल एज के बाद दोबारा सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। I write as well as listening songs, गाने फर्स्ट I write as well as I listen songs. मैं लिखने के साथ साथ गाने भी सुनती हूँ।
मैं थोड़ा सा धारा बदलता हूँ, सब लोग एक ही टेंस में बना रहे हैं, अच्छी बात है। I am taking your class as well as I am taking your class as well as having मूंगफली। मैं तुम्हारी क्लास भी ले रहा हूँ और साथ ही साथ मूंगफली भी खा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में ध्यान आए, हाँ निधि तुम तो बना दो, जिसको बाद में ध्यान आए व्हाट्सएप कर देना। निधि I am listening process as well as I am thinking another sentence. मैं प्रोसेस को भी सुन रही हूँ, साथ साथ दूसरा सेंटेंस भी सोच रही हूँ। सर आई एम रेडी। आई एम रेस्ट एज वेल एज रेडी। मैं रेस्ट हूँ, साथ ही साथ तैयार भी हूँ। वेरी स्मॉल गुड एग्जाम्पल। I am traveling and surfing net. Sorry, as well as surfing net. मैं यात्रा कर रही हूँ, साथ ही साथ नेट भी चला रही हूँ। I am ready. She get happy as well as I. वो खुश हो रही है, साथ ही साथ मैं भी। Good, nice. Me too. मैं भी खुश हो रहा हूँ। There? पर्याप्त। I am ready. Okay, तुम बनो। I teach Pavni as well as I make लड्डू। मैं पावनी को पढ़ाती हूँ, साथ ही साथ लड्डू बनाती हूँ। चलिए, Namrata used can chapter especially 3 to 4 times. I think knowingly. I asked my maid, can you make 1 cup of tea? Then I asked, no, can you make 2 cups of tea? She does not reply, she just smiles. अच्छे वाक्य थी ये सब। दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो इससे थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है। और सीधे सीधे आप एक लाइन से भागते जा रहे हो, मैं इतने बजे उठता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर वो करता हूँ, फिर ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, सो जाता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा अजीब लगता है कि दिन भर आपने किसी से कोई बातचीत ही नहीं की, पूरे दिन में कोई बातचीत नहीं है कि किसी से थोड़ी सी बातचीत रखिए, अच्छा लगता है। जिससे ना बने जबरदस्ती नहीं, वो सिंपल स्पीच दे। एक पता नहीं हमने बताया था कि नहीं, नम्रता ने यूज किया है, देन आई चेंट मंत्रास। बताया था कल ही बताया था, कल ही बताया है आपने। देखो तुरंत यूज कर लो, आ गया दिमाग पे। एक बड़ा अच्छा सेंटेंस था, बहुत कॉमन है, सभी यूज कर सकते हैं। आई पिक माई ड्रेस अकॉर्डिंग टू द डे। बढ़िया सेंटेंस है। मैं अपनी ड्रेस का चयन दिन के अनुसार करती हूँ। जैसे सोमवार को ये कलर पहनना है, मंगलवार को ये कलर, बुधवार को ये कलर, गुरुवार को ये कलर, ब्ला ब्ला ब्ला। गुड। सो आई पिक माई ड्रेस अकॉर्डिंग टू द डे। अच्छा सेंटेंस था। आई रीच देयर बाय 9:45। मैं वहाँ
9:45 तक पहुंच जाती हूँ। एक जगह अच्छा एक शब्द यूज किया था, इफ नीडेड। क्या था सेंटेंस, नाम बता। सर नीडेड तो स्टार्टिंग में यूज किया था मैंने, आई नीड फॉर टूथपेस्ट ना। हाँ, आई नीड माई टूथ ब्रश फॉर टू पुट टूथपेस्ट। नहीं तो जैसे कुछ किया था, आई रिस्पॉन्ड द मेल्स इफ नीडेड, ऐसा कुछ। यस सर, आई रिस्पॉन्ड मेल एंड ईमेल if needed. I replied. वो अच्छा लगा। I had some phone call. सर एक्चुअली जो मैंने लिखा था वो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, मैंने अपने मन से ही जो आया मेरे मन में मैं बोल सर कुछ भी ऐसा नहीं है। This is my experience. Sir, your voice is chopping. This is my experience. होता है, यही होता है, it happens. हम बनाते कुछ हैं, निकलता कुछ और। Now, am I clear or still chopping? Still chopping. It's still chopping. Your voice is still chopping and lagging also. I'm disconnecting and connecting again. Break the ice, friends. You can break the ice, maybe. Okay. Sir is there. Okay, sir is there. Am I audible, बच्चे लोग? Yes, sir. You are audible. अच्छा दीपिका, तुम क्लास के दौरान मैसेज भी देख लेती हो, रिप्लाई भी कर देती हो, ये कैसे करती है? हाउ डू यू डू इट? एक्चुअली सर मेरी क्लासेस भी मीट में होती हैं, तो मुझे ये एक्सपीरियंस है, मैं कर लेती हूँ। तो उसने तो मैसेज व्हाट्सएप में किया, मिनी ने। हाँ तो ये आ जाता है ना, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मैंने यहाँ से स्क्रॉल किया, देखा और मैसेज कर दिया। I have closed all the notifications. क्योंकि अगर मेरे नोटिफिकेशंस ऑन होंगे तो वो तुम लोगों को भी दिखाई देंगे। सर कई बार ओटीपी वगैरह आती है ना कंपनी की, इसलिए मेरे को चालू रखना पड़ता है। हाँ, एक बड़ा खूबसूरत सेंटेंस था दोस्तों, इसको नोट कर लेना। लेटर ऑन आई रैप अप एंड आई कम बैक होम। होम के पहले टू नहीं लगता है, याद रखिए दोस्तों। चलो एक लाइन से सबसे बुलवाते हैं, नम्रता ही से शुरू करते हैं। लेटर ऑन आई कम बैक होम, तत्पश्चात मैं घर वापस लौटता हूँ। नम्रता। लेटर ऑन आई कम बैक होम, तत्पश्चात मैं घर वापस लौटती हूँ। निधि। Later on, I come back home. इसके बाद में घर वापस आती हूँ। दीपिका। लेटर ऑन आई कम बैक होम, इसके बाद मैं घर वापस आती हूँ। नीता जी। लेटर ऑन आई कम बैक होम, तत्पश्चात मैं घर वापस आती हूँ। नेहा। नीता जी, लेटर ऑन है ना? हाँ, लेटर ऑन। लेटर ऑन। Later on, I come back my. Okay, later on.
या नेहा कम। Okay. Later on, I come back my home. तत्पश्चात मैं घर वापस आती हूँ। निशा दी। लेटर ऑन आई कम बैक होम, इसके बाद मैं घर वापस आती हूँ। रोशनी। लेटर ऑन आई कम बैक माई होम, इसके बाद मैं घर वापस आती हूँ। सॉरी, कम अगेन। सॉरी। सर यू आर म्यूट। लेटर ऑन आई कम बैक माई होम, इसके बाद मैं घर वापस आती हूँ। बेटा माय और होम लगाना सॉरी। टेक्निकली गलत सॉरी है, सर, पता है? लेटर ऑन कम बैक होम, आई Who? कम बैक होम। समझ गई कि नहीं कि सॉरी बोल के बस? होम उसी को कहते हैं जो अपना होता है। एम आई ऑडिबल? क्योंकि Yes, sir. आर ऑल डन? Okay. Yes, sir, all are done. And the review is also done. Namrata beautified her speech with one idiom and one interactive. Interactive idioms are not necessary, but sometimes if you use it, they come on your tongue. So they beautify your speech. Okay. Is anybody else ready to deliver a speech today or no? No, no. Okay. Bachcho, what is going on in your bench? Yes, hello. सर मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा पहले। मैं एक काम करूंगा, जब पहली स्पीच हुई थी उस दिन का वीडियो भिजवा दूंगा मैं आपके ग्रुप में, आप देख लेना। ओके आप सर। आई थी कि नहीं? आ तो गई थी शायद, स्पीचेस ही तो चल रही थी। सर फर्स्ट स्पीच जो मुझे देनी होगी सर, वो इंट्रोडक्शन मुझे देना होगा। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब फर्स्ट स्पीच चल रही थी तब आपकी एंट्री हो चुकी थी कि नहीं? नहीं सर, मैंने डेली रूटीन वाली मतलब स्पीच तो इंट्रोडक्शन की नहीं सुनी। अभी आप ये वाली जैसी आपने देखी इसकी तैयारी कर ली सर, डेली रूटीन। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। और शॉर्ट इंट्रो जरूर दे दें। शॉर्ट इंट्रो। यस सर, आई हैव गिवन सर, आई हैव गिवन शॉर्ट व्हेन आई। बाद में फिर अपन उसको कर लेंगे। आप उसको रिकॉर्ड करके हमें भेज देना अलग से। ओके सर, थैंक यू सर। Deepika, have I given you any sentence in past simple? Yes, sir. Tell me. Yes, sir. No, I thought बस एक ही दिया था सर। So write down the second sentence in past. Sir, one sentence is rest on past simple. That is, उसने अटक अटक कर अंग्रेजी बोली। उसने अटक अटक कर अंग्रेजी बोली। Yes, sir. Sir, it is rest. Okay. तो चलो, who has to make this sentence? बच्चों सेंटेंस एक बार सुन लो पहले। सेंटेंस कितना भी बड़ा या कठिन लगे होता नहीं, फॉर्मूले से तो बाहर जाएगा ही नहीं। और जो कठिन शब्द है मैं हूं ना। जी सर, ये अटकने की इंग्लिश नहीं ध्यान में आ रही है। जब अटकोगी तब बता देंगे। आप स्टिल अटकी हुई। शिवांग, आर यू देयर? हिम्मत कर ले बेटा। निधि, तुम लोग को नहीं मिला ये। Yes, sir. It's new for us. इन लोग को भी नहीं मिला है, इन लोग के लिए नया है।
फंबल करना होता है क्या इसमें? फंबल? सर अटक अटक सर स्टक होता है। स्टक अब हमारी से पूछ ले आपका। फिर कहा जाए सर? You are not audible, Nidhi. Shivang is disconnected. Nidhi Patel left. Sir, I think Gramble is also using. शिवांग are you there? क्योंकि वो हिम्मत करता है। नो सर, शिवांग इज लेफ्ट। हाँ, इसीलिए, नहीं तो इतनी देर वो रुकता थोड़ी, वो पट से आ जाता। वो समझ गया इस क्लास में सेंटेंस बनाना कोई वो प्रेस्टीज इश्यू नहीं होता है। He has understood this thing. Sir, may I make this sentence? अब कब से तो बोल रहे हैं। Who Yes, sir. has to make this sentence? Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. This sentence is related. हाँ, ठीक This ठीक, very good. Yes, sir. This sentence is related to past indefinite or past simple sentence. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is he. Then after, I will take the helping verb, but there is no helping verb. Then after, I will take the second form of verb, and the second form of verb is spoke. Then after, I spoke. ये जो मैंने ऊपर लिखा है, ये आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है तो दिख नहीं रहा है? Yes, sir. Then after, I will take the object and object of English. हाँ, इससे सेंटेंस बाहर नहीं जाता, इससे अंदर ही रहता है। Yes, sir. Then after, I will take the object, and object is English, and then lastly, I will take the extension, and extension is stuck, and lastly, I will put the full stop. Thank you, sir. ये सही वाक्य बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये कोशिश करने के लिए। ये कोई भी कर सकता था, इससे बाहर तो सेंटेंस जा नहीं रहा है। Yes, sir. कुछ ही क्षण पहले मैंने बोला था कि मैं हूं ना, ये भी तो बोला था। तो अब इससे बाहर जा रहा होता, कोई बहुत बड़ा सा एक्सटेंशन होता, तो हम बोलते चलो ठीक है, निधि बनाएगी या शिवांग आएगा तो शिवांग बनाएगा। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब का सेकंड फॉर्म है और एक ऑब्जेक्ट। बोलो भारत माता की जय। एक्चुअली बच्चों, इंग्लिश के नाम पे तुम लोग को इतना भयाक्रांत कर दिया गया है कि तुम लोग वैसे वो हनुमान जी के टाइप के हो गए। मालूम, हनुमान जी को श्राप था ना कि जा बच्चा, जब तुझे अपनी शक्ति की वास्तविक जरूरत पड़े विस्मृत हो जाए।
बहुत शैतानी करते थे, वैसा तुम लोग के साथ हो गया है। यू आर सो शक्तिशाली, बट यू हैव फॉरगॉटन योर पावर्स। चलो, क्वेश्चनिंग आंसरिंग का राउंड खेल के इसको हम विराम दे रहे हैं। हम शुरू कर रहे हैं और फिर हम गायब हो जाएंगे। आई एम स्टार्टिंग विथ एज यूजुअल दीपिका। दीपिका, हु स्पोक ब्रोकन इंग्लिश? Sir, she spoke broken English. किसने अटक अटक के बोली इंग्लिश? सर, उसने अटक अटक के इंग्लिश बोली। नम्रता, who spoke broken English? I spoke broken English. किसने अटक अटक के इंग्लिश बोली? मैंने अटक अटक कर अंग्रेजी बोली। निधि, who spoke broken English? They spoke broken English. जी, किसने अटक अटक कर अंग्रेजी बोली? उन्होंने अटक अटक कर अंग्रेजी बोली। रोशनी, who spoke broken English? We spoke broken English. रोशनी, किसने अटक अटक कर इंग्लिश बोली? हमने अटक अटक कर इंग्लिश बोली। नीता जी, who spoke broken English? रोशनी कपिल शर्मा स्पोक ब्रोकन इंग्लिश। नीता जी, किसने अटक अटक कर इंग्लिश बोली? रोशनी कपिल शर्मा ने अटक अटक कर इंग्लिश बोली। नेहा, हु स्पोक ब्रोकन इंग्लिश? जी, पप्पू स्पोक ब्रोकन इंग्लिश। नेहा, किसने अटक अटक कर इंग्लिश बोली? नीता जी, पप्पू ने अटक अटक कर इंग्लिश बोली। निशा दी, हु स्पोक ब्रोकन इंग्लिश? He spoke broken English. किसने अटक अटक कर इंग्लिश बोली? उसने अटक अटक इंग्लिश बोली। निमी, who is rest? All are done. Bye guys. Good night. Okay, good night. Off. Bye. उसने कुछ देखा नहीं।